Hello students, today we shall learn one more tense, another tense, how to convert it into passive voice. This is the lecture for voice, part 6. This is the sixth lecture for the voice. And the topic we are going to learn today is present perfect tense. First, let us see when do we use present perfect tense. Present perfect tense is used to indicate the actions that has occurred इन रिसेंट टाइम, जो अभी अभी पूरी हुई है उसी एक्शन को इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है. ओके, व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग वर्ड्स दैट हेल्प अस that this sentence belongs to present perfect tense? The first word is since. Since. What is the meaning of since? Since indicates the beginning of time. For example, I have been teaching since 1 o'clock. Okay, I have been teaching English since 2000, since 1995. Okay, so that is the beginning of time. Beginning of time, maybe the date, maybe the day, maybe the month. Okay, then another word is for. What is the meaning of for? Okay, for is used for duration of time. For example, I have been teaching English for 25 minutes. For 25 minutes. I have been living in Ahmedabad for 25 years. Okay, I have taught English for 20 years. So this is the meaning for. This is the meaning of for. Then when do we use at? At हम कब use करते हैं? अभी तक. Okay, I have not completed my homework at. Already मतलब कब का? We have already submitted our project. Ever मतलब क्या कभी भी. Have you ever visited Taj Mahal? That is the meaning of ever. Then there is never. Never का meaning होता है कभी नहीं. We have never visited Taj Mahal. Just मतलब अभी. Okay, we have just switched on the TV. Just now का similar meaning है. We have just switched on the TV just now. Then there is recently. Recently का meaning होता है अभी भी. The Prime Minister has visited Gujarat recently. Then there is certainly. Certainly का meaning होता है surely. Certainly का meaning होता है surely. For example, my brother has certainly helped the students to solve this sum. Up to this time मतलब अभी तक. Okay, I have not submitted my project up to this time. और जो completely लिखा है, completely का meaning है we have submitted all projects completely. Okay, so these are the identifying words that are used to indicate the present perfect tense. इसके अलावा भी होते हैं that you have to decide by translation, by meaning of the sentence, that we shall learn when we will start learning tenses. Okay, now let us see what is the sentence formation of active voice and passive voice. Okay, in active voice, sentence starts with subject plus have has plus past participle plus object. What is the most important thing is have and has. When to use have and when to use has. Okay, with pronoun I, we, you, they, or any plural name, you have to use have. And has is used only with he, she, it, or any singular name of person, of thing. Okay, or animal. In passive voice, object plus have has plus been plus past participle. In short, this short sentence formation you have to keep it in mind for examination. In active voice, have has plus past participle. In passive voice, have has plus been plus past participle. Understood? Beta? Fine. Now let us begin to learn. Let's begin to learn assertive sentence to convert them into passive voice. The first sentence I have already written. I have completed my homework. My homework has been completed by me. My homework has been completed by me. Okay, now let us see second sentence. The teacher has taught. The teacher has taught music today.
द टीचर हैज टॉट म्यूजिक टुडे, टीचर ने आज म्यूजिक पढ़ाया है. ओके, व्हाट इज द सब्जेक्ट? द टीचर. व्हाट इज द वर्ब? हैज टॉट. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? म्यूजिक. एंड व्हाट आर द अदर वर्ड्स? टुडे. ओके. Okay. Now let us convert this sentence into passive voice. Of course, music is the object, so we shall begin the sentence with music. Okay. So the answer would be like this. Music has been taught. Music has been taught by the teacher today. Music has been taught by the teacher today. So, okay, clear? Okay, that's fine. Let's see another sentence. Let me take help the book for sentences. Okay. Bhairavi has already learned music. Bhairavi has already learned music. Bhairavi has already learned music. So this is the subject, this is the verb, and this is the object. Subject, verb, and object. So you have to begin the sentence with music. Okay. The answer would be like this. Music has already been learned by Bhairavi. Music has already been learned by Bhairavi. Okay, so this is the answer. Okay, fourth वाला एग्जाम्पल देखते हैं. Rahul has drawn a good picture. Rahul has drawn a good picture. राहुल ने एक अच्छा पिक्चर ड्रॉ किया है. So let us convert them into passive voice. The answer would be Rahul is the subject, has drawn is the verb, a good picture is the object. So you have to begin the sentence with a good picture. Okay. A good picture has been drawn by Rahul. A good picture has been drawn by Rahul. So understood? Okay, that's fine. Okay, fifth sentence देखते हैं. 5. Okay. My brother has taken breakfast. My brother has taken breakfast. Okay. My brother is the subject, has taken is the verb, and breakfast is the object. So we shall begin our sentence with breakfast. Okay. So here we shall write breakfast. Breakfast has been taken by my brother. Okay, breakfast has been taken by my brother. तो ये सेंटेंस होगा है. चलो नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. नेगेटिव में वही ध्यान रखना है जो अभी तक अपने बी वाले सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी और फ्यूचर टेंस में जो बात मैंने बताई थी कि बी कहाँ लिखना है,
वही तरह इस सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव और क्वेश्चन में ये बीन कहाँ रखना है, वो आपकी गलती होगी एग्जाम में। आप तो पढ़ते हो तो आप नहीं जानते हो कि कैसे गलती होती है, मगर हम पेपर चेक करते हैं तो हमें पता होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स वेर डू दे मेक मिस्टेक्स। ओके, सो दैट इज वाई ध्यान रखना। स्टूडेंट्स द स्टूडेंट्स हैज the students have not submitted the students have not submitted projects. The students have not submitted projects. Okay, so what is the subject? The students is the subject, submitted is the verb, and projects are the objects. So you have to write projects in the beginning. So answer would be projects। प्रोजेक्ट्स प्लूरल है तो उसके साथ हैज नहीं लगेगा, प्रोजेक्ट्स के साथ हैव आएगा। ओके, प्रोजेक्ट्स हैव नॉट बीन सबमिटेड, प्रोजेक्ट्स हैव नॉट बीन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट। शायद कुछ गलत लिखा मैंने, देखो एग्जैक्टली क्या गलत लिखा। प्रोजेक्ट्स हैव नॉट बीन सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स ऐसे लिखा। आंसर कैसे होना चाहिए? प्रोजेक्ट्स हैव बीन नॉट सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। एम आई राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, ये सही लिखा है, मगर जो रॉन्ग वाला बोला ना वो आप लिखते हो। प्रोजेक्ट्स हैव बीन नॉट ऐसे लिखते हो। ये जो बीन लिखा है वो आप यहाँ लिखते हो, और ये जो नॉट लिखा है वो आप यहाँ लिखते हो। ओके, तो ये ध्यान रखना है। वही बात किस तरह से याद रखना है, बीन है वो यहाँ वर्ब के साथ ही लिखना है आपको। बीन जो है वो वर्ब के साथ ही लिखना है। ओके, चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ओके, why have you not submitted project? Why have you not submitted project? Okay, यहाँ पर देखिए sentence starts with why, so we can say that this sentence is not assertive, not negative, but it is इंट्रोगेटिव। ओके, सो इंट्रोगेटिव है तो आपको क्या करना होगा, वाई तो पहले लिखना ही है जैसे है इस तरह से। ओके, फिर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ओके, प्रोजेक्ट इज द ऑब्जेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट लिखा है, ओके, प्रोजेक्ट इज द ऑब्जेक्ट, वो आपको लिखना है आगे। मगर उससे भी पहले ऑक्सिलरी वर्ब्स होने चाहिए। कौन से? हैव, हैज, इज, एम, आर, वाज, वेयर, जो भी है। यहाँ हैव हैज है तो यहाँ आपको लिखना है प्रोजेक्ट के हिसाब से, हैव लिखना है या हैज लिखना है। प्रोजेक्ट सिंगुलर है तो प्रोजेक्ट के साथ आएगा हैज, प्रोजेक्ट के साथ क्या आएगा? हैज। तो यहाँ पर होगा वाई हैज प्रोजेक्ट, वाई हैज प्रोजेक्ट नॉट बीन submitted। Why has project not been submitted? और लास्ट में लिखना है by you। ओके, इस तरह से। थर्ड, what have you preferred? इसमें एक बात की आपको परेशानी नहीं है। कौन सी? पास्ट पार्टिसिपल नहीं आता है शायद तो चलेगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल है और पैसिव वॉइस में भी पास्ट पार्टिसिपल है, V3 है। ओके, व्हाट हैव यू प्रीफर। अभी यहाँ हैव इसलिए लिखा है ये यू की वजह से, ये जो यू लिखा है उसकी वजह से। ओके, मगर अभी आपको यू तो लास्ट में चला जाएगा बाय यू, तो अभी उसको भूल जाना है। तो व्हाट के साथ कंपल्सरली आपको सिंगुलर ही लिखना है, वो मैंने पहले भी समझाया आपको, व्हाट या हु के साथ। ओके, तो इसका होगा व्हाट
has been, what has been preferred by you, what has been preferred by you, ये आपका आंसर है। ओके चलो वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो हैज टॉट यू इंग्लिश। आप गलत इंग्लिश बोलते हो, गलत यूज करते हो, कोई पूछेगा आपसे किसने इंग्लिश पढ़ाया है आपको। ओके तो वो है तो उसका क्या करना है अभी आप जानते हो। यू आर नॉट विथ अनफेमिलियर विथ वो टाइप क्वेश्चन। ओके यू हैव टू यूज बाय वुम। ओके क्या आंसर होगा इसका, बाय वुम। और ये जो यू लिखा है वो आपको बिगिनिंग में लिखना है। बाय वुम यहाँ पर जो यू लिखा है ओके उसको दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। हाउ डू वी डिसाइड ऑब्जेक्ट, बाय आस्किंग क्वेश्चन विद व्हाट और वुम। what does who teach English, okay, or who is taken here as subject, okay, or whom do the who teaches, जो की जगह पर जो पर्सन है वो किसे पढ़ाता है, यू को। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप आगे लेके उसको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम इंग्लिश को आगे लाके करते हैं तो इंग्लिश के आगे आएगा, इंग्लिश इज सिंगुलर सो वी शैल यूज हैज विथ इंग्लिश। बाय whom हैज इंग्लिश, बाय whom हैज इंग्लिश, और टॉट का होगा बीन टॉट। by whom has English been taught, और you बाकी बचा उसका होगा to you और क्वेश्चन मार्क। ओके by whom has English been taught to you। ओके इस तरह से। चलो इसको दूसरी तरह से भी बनाते हैं। ये यू इंग्लिश है उसको भी आगे लाके इंग्लिश से बना दिया, तो अभी यू को आगे लाके बनाते हैं। तो यू के साथ हम हैज यूज नहीं करते, यू के साथ हम यूज करते हैं हैव। ओके तो उसका आंसर होगा बाय whom have you, by whom have you English been taught, और क्वेश्चन मार्क। by whom have you English been taught। ओके आपको इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, इस तरह से। ओके बोलो कोई क्वेश्चन है तो बोलो। ये वो वाला क्वेश्चन देखा, व्हाट वाला क्वेश्चन देखा। वो वाला देखा हु हैज टॉट यू इंग्लिश, तो बाय whom हैज इंग्लिश बीन टॉट टू यू। ओके इंग्लिश को आगे लाके बनाया, फिर यू को आगे लगाया, बाय whom हैव यू इंग्लिश, बाय whom हैव यू बीन टॉट इंग्लिश। सॉरी ये गलत लिख दिया, हैव यू इंग्लिश इस तरह से नहीं होगा। ओके वर्ब के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये होगा इस तरह से आंसर होगा। ओके बाय whom have you been taught English, by whom have you been taught English इस तरह से। ओके दूसरा एग्जांपल देखने हैं, अभी एक देख लेते हैं फिफ्थ वाला। ओके बाद में कुछ एक्सरसाइज करते हैं, टाइम बचता है। तो कितने मिनट्स हुई अभी, 19 मिनट्स हुई है अभी, तो बहुत टाइम है। तो फिर वाई हैव यू अर्नड लेस मनी, एक और सेंटेंस है। ओके तो इसका बनाते हैं, वाई हैव यू अर्नड, वाई हैव यू अर्नड लेस मनी। सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, वर्ब कौन सा है अर्नड, और ऑब्जेक्ट कौन सा है लेस मनी। ओके तो चलो इसका कैसे होगा, वाई हैज, ये जो लेस मनी है
ओके, उसको आपको आगे लिखना है। ओके, क्या होगा? वाई हैज लेस के वाई हैज लेस मनी बीन अर्नेड। बीन कहाँ लिखता हूँ वो ध्यान रखना, आप गलती मत करना। वाई हैज लेस मनी बीन अर्नेड बाय यू। वाई हैज लेस मनी बीन अर्नेड बाय यू। ओके, इस तरह से। चलो ये थोड़ी टेंस की थोड़ी क्विज देख लेते हैं, बाद में वॉइस की भी देखते हैं। ब्लैंक यू बीन टू जापान, इज हैव या हैज, क्या आंसर आएगा इसमें? यू बीन टू जापान, क्या आप कभी जापान गए हो? ओके ओके, हैव इज द करेक्ट आंसर। हैव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यू के साथ हैव होते हैं। बहुत बेसिक टेस्ट है आपकी। वी ब्लैंक नेवर इटन मैक्सिकन फूड, हमने कभी मैक्सिकन फूड नहीं खाया है। तो क्या आएगा मैक्सिकन फूड के साथ? वी के साथ हैव। ओके, थर्ड वन, एंड्रिया हैज यस, एंड्रिया हैज ब्लैंक हर अम्ब्रेला। ओके, एंड्रिया अपनी अम्ब्रेला भूल गई है, तो इसके साथ क्या आएगा? एंड्रिया हैज फॉरगेटिंग या फॉरगोटन। ओके, फॉरगोटन इज द राइट आंसर। ब्लैंक द सन कम अप। ओके, सन है तो सिंगुलर है, तो उसके साथ आएगा हैज। बाद में द चिल्ड्रन ब्लैंक द लॉस्ट पपी। द चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव आएगा, तो दो ऑप्शन हो गए आपके पास, हैव या हैव। ये गलत है फाइंड वाला, क्योंकि वो V3 नहीं है, V3 ये है फाउंड। ओके, तो हैव फाउंड। बाद में विविस बीन अ वेजिटेरियन 3 years, 3 years लिखा है। चलो अभी आपने ध्यान रखा है तो पता चलेगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा या आफ्टर आएगा, बोलिए। 3 years बिगिनिंग ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, या कुछ और है? बिगिनिंग ऑफ टाइम नहीं बोल सकते, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फोर, यूज करते हैं बेटा। ओके, फिर आई हैवंट वर्कड लास्ट डिसम्बर। ओके, लास्ट डिसम्बर से मैंने काम नहीं किया, तो यहाँ पर क्या आएगा? सिंस या फॉर या बाय? last December is the beginning of time. Since it is the beginning of time, we shall not use for, we shall use since, because since is used before beginning of time, with beginning of time. Okay, and for is used for duration of time. By तो कभी नहीं आएगा। और वो बात तो मैं अभी तक नहीं भूला, नेल्सन मंडेला के राइटर कौन है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। कैसे आंसर लिखे थे। बी सिंसियर, बहुत कम स्टूडेंट है, ऐसे 4 या 5 ही है, मगर थोड़ा ध्यान रखो बेटा। चलो नेक्स्ट। ओके, दूसरे क्वेश्चन देखो। अ बिग प्राइज वन बाय पूजा, कौन सा आंसर आएगा? हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या वॉज बीन, कौन सा आंसर आएगा इसमें, बोलो। Of course, has been is the correct answer. A big prize has been won by Pooja, because big prize is singular. That is why we are using has been. Okay. Next one, the master spanked the poor. Okay. तो यहाँ आएगा the master has spanked the poor. Okay. Third one, change the sentence into passive voice. I have placed an order for a digital camera. ओके, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ डिजिटल कैमरा। चलो 3 ऑप्शन है, पढ़ के मुझे बताओ। ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा। ए, बी और ए, सी। ए, बी और ए, सी, कौन सा आंसर आएगा? आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ डिजिटल कैमरा। मुझे भी नहीं पता, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ के मुझे बताइए। Okay, A is the right answer. An order for a digital camera has been placed by me. Perfect. इसमें क्या गलत है? Had लिखा है, इसमें क्या गलत है? Have लिखा है, have नहीं आएगा इसमें। Okay? चलो next question 7. As a new stamp by the postal department. बोलिए।
बीन रिलीज्ड, वेयर रिलीज्ड, वॉज रिलीज्ड या रिलीज्ड? ओके, बीन रिलीज्ड वो सही आंसर है, उसका पैसिव भी बोल दीजिए। चलो, हैज अ न्यू स्टैम्प बीन रिलीज्ड बाय पोस्ट डिपार्टमेंट, ए सॉरी, चलो, हैज अ न्यू स्टैम्प बीन रिलीज्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ ये देखते हैं, देखो, हैज अ न्यू स्टैम्प बीन रिलीज्ड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। इसका चेंज द वॉइस करिए, 6 वाला है, क्या होगा इसका आंसर? हैज अ न्यू स्टैम्प बीन रिलीज्ड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। पैसिव में चेंज करना है इसको? नहीं, एक्टिव में चेंज करना है, क्योंकि बीन रिलीज्ड तो लिखा है तो पैसिव वॉइस है, बीन लिखा है तो ओके, तो इसको एक्टिव में चेंज करना है। एक्टिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट आगे लगाना होगा, पोस्टल डिपार्टमेंट। ओके, तो इसका आंसर होगा हैज पोस्टल डिपार्टमेंट, हैज पोस्टल डिपार्टमेंट रिलीज्ड a new stamp, a new stamp, has postal department released a new stamp? Okay, has postal department released a new stamp, इस तरह से होगा। Let's back to our quiz. ये हो गया। ओके, has the policeman the thief, has the policeman catch the thief, has the policeman catches the thief, caught the thief, was caught thief? बहुत इजी है, कैच का पास्ट पार्टिसिपल आपको लिखना है caught। ओके, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको याद है कि एक्टिव वॉइस में हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल और पैसिव वॉइस में हैव हैज प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, फिर nobody cheated by her, nobody cheated by her, तो nobody has been cheated by her, nobody have been cheated by her, had been तो नहीं आएगा because we are doing present perfect tense exercise, that is why only। okay, तो हैज या हैव nobody के साथ क्या लिखना है? nobody को आपको पता होना चाहिए, उसको हम सिंगुलर लेते हैं या प्लूरल लेते हैं। nobody को हम सिंगुलर लेते हैं, तो इसके साथ आएगा nobody has been cheated by her, फर्स्ट वन। चलो 10 में देख लेते हैं, चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। ही हैज ब्रोकन माई विंडो, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? ही हैज ब्रोकन माई विंडो। पढ़ लीजिए, तीनों आंसर आपके सामने स्क्रीन पर है। कई बार एमसीक्यू में क्विज टाइप में क्या होता है, हमें पता होता है आंसर मगर जल्दी इतनी होती है, इसलिए गलत पहला पढ़ते हैं, मगर उसमें पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन सब कुछ सही लगता है, मगर एक वर्ड माई विंडो की जगह द विंडो ऐसा गलत कर दिया है, वो हमें ध्यान में नहीं आता जल्दी की वजह से, फिर आंसर गलत हो जाता है। ओके, आई थिंक फर्स्ट माई विंडो लिखा है तो माई विंडो सिर्फ फर्स्ट में ही लिखा है, इसमें से ही पता चल जाता है। देखो, हर विंडो गलत है, द विंडो गलत है, तो इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा, क्योंकि इसमें माई विंडो लिखा है। माई विंडो हैज बीन ब्रोकन बाय हिम। ओके, चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। आई हैव नॉट रिसीव्ड अ टेलीग्राफ, मैंने टेलीग्राम रिसीव नहीं किया है, क्या होगा इसका? और टेलीग्राम बताइए, पैसिव वॉइस। telegram not been received by me, a telegram has not been received by me, a telegram has been received by me, a telegram have not been received by me। टेलीग्राम अभी आउट ऑफ डेटेड है। ओके, अभी तो एसएमएस है, ईमेल्स है। ओके, second is the right answer, a telegram has not been received by me। okay, 12,
Have you kept the secret? Have you kept the secret? What is the correct answer? Have the secret been kept by you? Has the secret been kept by you? Had the secret been kept by you? Has you kept the secret? What is the correct answer? Tell me. द सीक्रेट आगे लाना है, द सीक्रेट के साथ हैज होगा तो क्या आंसर होगा? हैज द सीक्रेट वो होगा तो कहाँ है हैज द सीक्रेट? ए रहा। ओके इस तरह से दूसरे नहीं पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा कि दैट इज द राइट आंसर। हैज द सीक्रेट बीन केप्ट बाय यू। ओके वो के साथ हैज लिखना है हैव, मैंने बोला आपको वो के साथ कंपलसरी सिंगुलर वर्ब लिखना है तो हैज होगा। हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर पर्सन। हु हैज टॉर्न माय बुक 14। ब्लैंक यू रिटर्न द लेटर तो हैव यू रिटर्न द लेटर। शी डन हर वर्क तो इसका आएगा शी हैज डन हर वर्क। अ बिग मिस्टेक बाय अमर तो उसका आएगा अ बिग मिस्टेक हैज बीन मेड बाय अमर। सो अंडरस्टूड, आई होप अंडरस्टूड बेटा। ओके फाइन। ओके तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसका वॉइस, हाउ टू कन्वर्ट देम इनटू पैसिव वॉइस, वो हमने देखा। क्या याद रखना है उसमें? एक्टिव वॉइस में हैव हैज प्लस पास्ट पार्टिसिपल और पैसिव वॉइस में हैव हैज प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल। उसके सेंटेंस भी देखे, उसकी एक्सरसाइज भी देखी। होमवर्क आपको कितने सेंटेंस लिखने? 30 सेंटेंस लिखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सारे लिखना है, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। ओके 30 सेंटेंस किसी भी ग्रामर बुक में से लिखोगे नो प्रॉब्लम। इंटरनेट पर से ग्रामर बुक में कि कोई आपके पास कोई रेफरेंस बुक है उसमें से लिखोगे तो भी चलेगा। ओके इस तरह से 30 सेंटेंस आप लिखना, वो आपका होमवर्क है। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।